Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I'm Dr. Shaheen Pasha, and today we are going to talk about information and communication technology in this lecture. Information and communication technology is the technology required for information processing. In particular, the use of electronic computers, communication devices, and software applications to convert, store, protect, process, transmit, and retrieve information from anywhere, anytime. Information and communication technology is a broad term जो कि अपने अंदर बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस और एप्लीकेशंस जो हैं उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, सच एज रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर and network, hardware and software, and a variety of applications for these technologies such as gaming, social networking, instant messaging, and texting. Defined as technologies that provide access to information through telecommunication, ICT includes internet, wireless networks, cell phones, and other communication media. The use of ICT in English language teaching and in other subjects promotes the quality improvement of teaching and learning. और जब हम ये कहते हैं कि ICT है क्या, उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ICT जो है it covers any product that will store, retrieve, manipulate, transmit, or receive information electronically in a digital form. For example, personal computers, digital television, emails, robots, digital communication technologies which allow people and organizations to communicate and share information digitally. तो जब हम इसकी टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ आते हैं तो ICT stands for Information and Communication Technologies, ये तो हर किसी को पता चल गया. ICT refers to technologies that provide access to information through telecommunications. It is similar to information technology, but focuses primarily on communication technologies. ICT encompasses the hardware, software, networks, and media used to collect, store, process, transmit, and present voice, data, text, images, information, and related services. ICTs are now used in almost all operations in society to fulfill routine tasks. अब अपने आप को ही देख लें, आजकल के हालात को ही देख लें, ठीक है, कि उसके अंदर हम किस तरह से ICT के साथ जुड़े हुए हैं, such as information age. The information age, also known as the computer age, digital age, or media age, is a historical period that began in the late 20th century, characterized by a rapid epochal shift from the traditional industry established by the Industrial Revolution to an economy primarily based upon information technology. और फिर उसके बाद हुआ क्या कि द इंफॉर्मेशन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो इस सोसाइटी जो है इज़ अ सोसाइटी वेयर द यूजेज
जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी वो सोसाइटी है जहाँ पे कि क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है और सिग्निफिकेंट एक्टिविटी. द पीपल who are able to partake in this form of society and sometimes called either computer users or even digital citizens. तो ये चीज़ें जो है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं इसने कितनी ज़्यादा चेंजेस ले आए हैं ऑन इंडिविजुअल बेसिस पे भी और ऑन ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे भी. और ये आईसीटी ही की वजह से ये जो सारी इंफॉर्मेशन एज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल इकोनॉमी, ई सोसाइटी, डिजिटल लिटरेसी और इस तरह की बहुत सारी और टर्म्स जो हैं आपको सुनने में आएंगी. और जब हम डिजिटल सोसाइटी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो है डिजिटल इकोनॉमी जो है रेफर्स to an economy that is based on digital computing technologies. Although we increasingly perceive this as conducting business through markets based on the internet and the World Wide Web. The digital economy is also referred to as the internet economy, new economy or web economy. और जब हम ई सोसाइटी की बात करते हैं तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये सोशल एक्टिविटीज़ को जो है वो जन्म देता है और उनको लोगों को दो नज़दीक लेके आता है. ई इकोनॉमी इज़ अ सोसाइटी दैट कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर ई कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन द एरियाज फ्रॉम ई गवर्नमेंट, ई डेमोक्रेसी एंड ई बिजनेसेस to e-learning and e-health that use information and communication technologies in order to achieve a common interest and goal. और जब हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है हम ये देखते हैं कि the American Library Association defines digital literacy as the ability to use information and communication technologies to find, evaluate, create, and communicate information requiring both cognitive and technical skills. कि इसके लिए इसको हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ये यूज़ करते हैं कि किस तरह से हमारी जो जनरल पब्लिक है या हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं इसको यूज़ करती हैं और डिजिटल लिटरेसी के अंदर अपने आप को एक्सेल करती हैं. और जब हम इसकी डिजिटल लिटरेसी जो है द अलाउज पीपल टू कंबाइन देयर डिजिटल एंड रियल लाइफ्स and to avoid mental health problems associated with abuses of digital technologies. जिस तरह के जो है understanding how to use web browsers, search engines, email, text, Wikipedias, blogs हमारे, Photoshop, PowerPoint, video creation, editing, software वगैरह वगैरह वगैरह. तो to showcase learning, evaluating online resources and accuracy, trustworthiness of information. और जब हम information literacy की बात करते हैं तो is the ability to understand, process and to be able to access, acquire करना, चीज़ों को organize करना, information को evaluate करना और मुख्तलिफ तरह की जो है रिज़ल्ट लेने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्फ करना, कोई किसी अच्छे और सॉलिड नतीजे पे पहुंचने के लिए. तो ये चीज़ भी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग को के लिए बड़ी ज़बरदस्त है. जिस तरह के वुड इंक्लूड अप्लाइंग द क्रिटिकल थिंकिंग criteria every time you
read the news or a magazine जो है either पर information literacy empowers people in all walks of life to seek, evaluate, use and create information effectively to use and to achieve their personal, social, occupational and educational goals. तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी का इन चीज़ों के लिए होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम टेक्नोलॉजी लिटरेसी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू यूज़ न्यू मीडिया सच एज इंटरनेट टू एक्सेस एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। जिस तरह के लिटरेसी इज़ रिलेटेड टू डिजिटल लिटरेसी in that when an individual is proficient in using computers and other digital devices to access the internet, digital literacy gives them the ability to use the internet to discover, review, evaluate, create and use information via various digital platforms such as वेब ब्राउज़र्स के। जब आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं जो लोग, वो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी जगहों से मटेरियल इकट्ठा करते हैं, डेटाबेस में जाते हैं, ऑनलाइन जर्नल्स में देखते हैं, मैगज़ीन्स में देखते हैं। आपको जो है इसी के ऊपर ही, टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आपको मैगज़ीन्स मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर्स, ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा कर लेते हैं। मीडिया लिटरेसी एंड क्रिएटिविटी is the ability to access, analysis and evaluate images, sounds and words in various media and to produce, communicate and distribute content to audiences of all sizes. इसके एग्जाम्पल क्या है कि CDs, DVDs and other example of media are newspapers, television, रेडियो, प्रिंटेड मटेरियल, कॉमिक्स हैं, ब्रोशर्स हैं, इंफॉर्मेशन है हमारे इंटरनेट के ऊपर, और उसके अंदर बहुत सारी जो है एडवर्टीजमेंट्स जो नज़र आती हैं वो हमारी उसके अंदर जो है आ जाती हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हैं वो क्या है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एसेंशियली मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट्स: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्क एंड पीपल। के बगैर तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ इंसानों के बगैर, ह्यूमन बीइंग के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती इस दुनिया के अंदर। दीज 5 कंपोनेंट्स इंटीग्रेट टू परफॉर्म इनपुट प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक एंड कंट्रोल। हार्डवेयर जो है कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मीडिया डिवाइसेस। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। दिस इंक्लूड्स द कंप्यूटर केस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है उसका, और माउस। ये क्या कहलाते हैं? ये हार्डवेयर हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस सच एज द हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड मैनी अदर्स। कंप्यूटर हार्डवेयर इज व्हाट यू कैन फिजिकली टच, ठीक है, एंड सी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है कि is a set of instructions and its documentations that tells a computer what to do or how to perform a task। कि ये उसको वो बताता है। सॉफ्टवेयर ये चीज़ होती है कि जिसके अंदर प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, और ये इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कि व्हाट टू डू और किस तरह से इस टास्क को परफॉर्म करना है।
Software includes all different software programs on a computer, such as application and operating system. और जब हम database की बात करते हैं, is the most general sense, is an organized collection of data. More specifically, a database is an electronic system that allows data to be easily accessed, manipulated, and updated. In other words, a database is used by an organization as a method of storing, managing, and retrieving information. और a network जो है is defined as a group of two or more computer systems linked together. There are many types of computer networks, including the following. Local area network है जिसको LAN कहते हैं. The computers are geographically close together, that is in the same building में होना चाहिए. And people जो है a body of human being considered generally or collectively a group of two or more persons, people जो हैं या ज़्यादा लोग जो है forming or belonging to a particular group such as a nation, class, ethnic group, country, family, folk या community, जो चीज़ भी आप कहें, आपको उससे वैसे ही पता चल जाता है कि हम किस तरह से इस चीज़ को लेके आगे चलते हैं. एंड देन व्हेन वी लुक एट द कि पैटर्न्स क्या हैं इसके यूजेज के, अब हम देखते हैं वेब सर्फिंग है, ईमेल, चैटिंग, मैसेजेस, ब्लॉगिंग, गेम्स, पेइंग बिल्स, क्या चीज़ है जो नहीं हो रही, और शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, डेली न्यूज़ पढ़ी जा रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये हो रही है. कितने पैटर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड जो हैं ये चल रहे हैं, और ये उसी को जो हैं ये देखते हैं कि दीज एक्टिविटीज़ कैन बी सोशल और अनसोशल इन नेचर. और इस चीज़ को जब हम ये देखते हैं कि किस तरह से, जिस तरह आजकल कोरोना है और कोरोना वायरस की वजह से सारी एजुकेशन सिस्टम्स, शॉपिंग्स, हमारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन इस थ्रू ICTs हो रहा है, और डिजिटल टेक्नोलॉजीज कैन इम्प्रूव पीपल सोशल एंड सिविक लाइफ्स but also expose them to disinformation and digital security risks. The internet and the smartphones have fundamentally changed the way people interact with each other. Evidence shows that online social contact typically components offline interactions rather than replacing it. It may hence help people over loneliness and social exclusion. Governments have also used digital technologies to make public service more effective and efficient, जो हम every day देखते हैं, and to ease access by users. On the other hand, एक तरफ तो इसके ये बहुत सारे benefits हैं. On the other hand, digital technologies expose users to significant safety risks such as cyberbullying and digital security breaches. Digital literacy skills and strong digital security are essential to ensuring that people fully benefit from the digital transformation. Moreover, social media have also exposed people to fake news and disinformation. जिस तरह से कि आपने देखा कि बहुत सारे लोग दूसरों की या ऑर्गेनाइजेशंस की जो है वेबसाइट्स हैक कर लेते हैं और उसके ऊपर गलत किस्म की इंफॉर्मेशन करके तो उसको फैला देते हैं. लिमिटिंग देयर एक्सपोजर टू competing viewpoints and contributing to a
polarization of political views, while the causal link from increased disinformation to low trust in government is not clearly established. People living in countries more exposed to perceived disinformation also report, on average, low trust in government. और जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको पता है कि ये कितनी ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए जो हैं वो परेशानी का और कंसर्न का बायस बनती है। और जब हम ये देखते हैं कि उसके इम्पैक्ट जो हैं ये किसको नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, और उसके अंदर जो है चेंज इन ब्लू टू वाइट कलर रेशो स्टाफ जो है आपका हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की जब बात करते हैं तो ये चीज़ हो जाती है। हमारी वेल बीइंग के ऊपर इसका आईसीटीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमारी खुशी और गमी इसके साथ जुड़ती चली जा रही है। और जॉब प्रैक्टिसेस हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारी वर्क की लोकेशन एंड ऑन उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, उसके सोशल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो ये क्या करता है कि रिड्यूस जो है अनसर्टेनिटी, इंक्रीज सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, इंफॉर्मेशन, और ये जो है इसके अंदर जो है फैसिलिटेट एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशल रिलेशंस करता है। इसके सोशल एस्पेक्ट के अंदर जब हम देखते हैं डिमिनिशिंग इनसिक्योरिटी ऑफ फिज़िकल इन्वायरमेंट है, इंक्रीज हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कि जॉब स्ट्रेस और रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज थी, तो उसके अंदर ये थोड़ा सा फैसिलिटेट कर देता है। और जब हम ये वेलबींग की बात करते हैं तो इट क्रिएट्स इम्पैक्ट ऑन साइकोसोशल एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग, सच एज बंदे की सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, उसकी मास्टरी वो जिस चीज़ में लेना चाहता है उसकी मास्टरी उसके अंदर वो हासिल कर सकता है बाय जॉइनिंग डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट क्लासेस ऑन इंटेलेक्ट। साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस एंड डिप्रेशन जो है उसका समटाइम्स हो जाता है, उसकी वेलबींग पे असर पड़ता है, एंड सोशल सपोर्ट उसको एक दूसरे से जो है वो हासिल हो जाती है। और जब हम ये देखते हैं इस चीज़ को और करते हैं कि मॉर्गन एंड कॉटन फाउंड दैट इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन through emailing, chatting in chat rooms, and instant messages was associated with decreased depression among college students. Higher level of internet use of gaming, shopping, or research were associated with higher level of depressive symptoms. And ये चीज़ जो है ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसकी देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ जॉब प्रैक्टिसेस की जब हम बात करते हैं तो ये एक्सटेंडेड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज है, लेंथनिंग ऑफ वर्किंग डे है, उसके अंदर कि आप जब बैठते हैं आपको पता ही नहीं चलता कितना टाइम गुजर गया, ट्यून्ड मैनेजमेंट ऑफ टास्क फ्लो एंड क्वांटिटेटिव मैन पावर नीड्स, और जो है जस्ट इन टाइम सर्विसेज हैं। और जब हम इसके वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो यूजिंग जस्ट इन केस मैनेजमेंट, मॉडलिंग एंड प्लानिंग ऑफ टिपिकल वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटरिंग परफॉर्मेंसेस कंपेल्ड टू परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। और जब हम इसकी वर्क लोकेशन की बात करते हैं तो इस एक्सटेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिस्टेंस वर्किंग, कि आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ता, आपको हर काम जो है आपके डेस्कटॉप पे आपको पता चल जाता है। रिमोट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट वर्क एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स,
और जब हम इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि द यूजेस ऑफ ICTs हैज़ क्रिएटेड इम्पैक्ट ऑन ecological sustainability, technological sustainability, economic sustainability, political, cultural sustainability, sustainability in other areas such as science, art, education, ethics, medicine, sports एंड सोशल रिलेशनशिप्स में भी इसने अपना बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट जो है वो डाला है। अब उसके अंदर जो है जो कुछ भी आप करने, आपको स्किल्स रिक्वायर्ड हैं डिजिटल एज के अंदर अपने आप को मनवाने के लिए। अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स is needed to succeed in the digital world of work। उसके अंदर आपको अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, आपको ICT स्किल्स की जो हमने अभी बात की कि वो उसमें आपको कॉम्पिटेंसी लेनी पड़ेगी। फिर आपको इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वैल्यू एडिड अपनी लर्निंग के अंदर सीखनी पड़ेंगी जो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकें। और डेफिनेटली जब आप किसी जॉब परफॉर्मेंस के लिए किसी ऑफिस के अंदर अपने बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपको वो स्पेशलिस्ट स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं कि ताकि आपको उसके ऊपर अबूर हो तो आप खुद भी काम कर सकें और जो आपके सबॉर्डिनेट्स हों आप उनसे भी अच्छे तरीके से काम करवा सकें। और फिर जब हम द एबिलिटी टू कॉप विद चेंज एंड कीप लर्निंग इंक्लूडिंग व्हेन आउट ऑफ वर्क, तो इमोशनली और सोशल स्किल्स आर especially important to fully benefit from digital technologies and safe navigation जो है विद द वर्ल्ड ऑनलाइन। और इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है ये देखना पड़ता है कि किस तरह से हम जो है ये सारी चीज़ें सीखें कि हम डिजिटल एज में शाना बशाना दुनिया के साथ जो है वो चल सके। और जब हम बात करते हैं जनरल एजुकेशन की और मेन स्ट्रीमिंग की, ये कभी हो नहीं सकता कि हम अपने जो स्पेशल नीड लोग हैं उनके लिए ICT के अंदर हम अपनी जगह ना बना सकें। ICT have created unprecedented learning opportunities and potential for children with स्पेशल नीड्स, जिस तरह फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी व्हील चेयर्स वगैरह ले लें, इलेक्ट्रॉनिक ले लें, लो टेक, मिड टेक एंड हाई टेक, आपको हर तरह की इसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी की चीज़ें मिल जाती हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए जो है ब्रेल सिस्टम से लेके टॉकिंग बुक्स तक जो है आपको ICT में फैसिलिटेट करता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए टॉकिंग बुक्स हैं और जो हैं उनके एम्बॉस्ड जो हैं राइटिंग्स हैं। और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के लिए बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन स्पैन को बढ़ाया जा सकता है। डिसलेक्सिक पीपल के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर वो अपनी जो है प्रैक्टिस करने से वो अपनी इस डिसलेक्सिया को जो है ओवरकम कर सकते हैं किसी हद तक। फिर लर्निंग एबिलिटी डिसेबिलिटीज़ के लिए जो पीपल हु आर सफरिंग विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर विच आर increasing their cognition skill, their social skills, their concentration span, their comprehension by adding up with different softwares, जिसकी वजह से कि बच्चों को जो है सिखाया जा सकता है। इमोशनल एंड बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ के अंदर ICT का एक बहुत बड़ा रोल है कि इनको किस तरह से काम डाउन किया जाए, किस तरह से उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो हैं
बच्चों के बिहेवियरल एंड इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ को काम करने के लिए जो है ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं. नेवरदलेस वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ICTs कैन हेल्प disabled and special need people and children, but it is not a magic bullet. There are many ways in which ICTs can help special need children. तो ये हमको ये देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से जो है उन्हें प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट. जिस तरह से हम देखते हैं कि सपोर्ट फॉर लर्निंग इन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं. ICT इज़ नॉट थ्रेटनिंग और जजमेंटल, motivating, rather make tasks more manageable for more satisfying outcomes for these special need children. Special need children can access multiple learning resources available on the internet. Special need children can promote their learning and life skills by using communication aids, computer access devices, switches, concept keyboards, screens, talking words, processors, big printer utilities, screen magnifiers, screen readers, or electronic brailles, utilities, softwares, spell checker and grammar checker, टॉकिंग बुक्स जिनकी हमने अभी पहले भी बात की, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टेक्स्ट टू स्पीच, फिर स्पीच टू टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, एजुकेशनल गेम्स हमारी, और फिर इंटरनेट बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग, मल्टीपल लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, multilingual internet and social media resources and provide young people with accurate information about relationship and health. अब तो ये है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर आप किसी भी लैंग्वेज में आप जो चीज़ सुनना चाहें आप वो वाला मोड दबा दें तो ICTs आपको ये सहूलत भी जो है वो प्रोवाइड करता है. और जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की तो ये फिर इंडिविजुअली भी हर स्पेशल नीड की तरफ ICT लेके जाती है, जिस तरह से कि दैट्स हेल्पिंग पीपल्स विद डिसलेक्सिया. तो ये क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के थ्रू जो है इन बच्चों को सिखाती है कि ये वो बच्चे होते हैं जिनको आपको पता है कि ये स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये डीकोड वर्ड्स की अदायगी प्रॉपरली नहीं कर सकते. तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर ये डिसलेक्सिया के अंदर वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस बारी बारी उसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं. एंड सच यूज़ शुड बी पार्ट ऑफ अ प्लान प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ कि जो भी टीचर जो है वो उनको दे तो उसकी IEP के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि हाउ टू मिनिमाइज these difficulties, or this involves providing tools that enable pupils to overcome their difficulties. और ये चीज़ जो है ये इन बच्चों को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है कि किस तरह से वो इस चीज़ को लेकर अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं. और जब हम जो लर्निंग स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो इन बच्चों के लिए द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्पेशल एजुकेशन हेल्प्स ब्रेक द बैरियर्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड प्रोवाइड देम विद एक्सेस टू द मोस्ट रेलिवेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो कि जो है प्रॉपरली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अलाउ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स टू गेट मॉडर्न एजुकेशन एंड अचीव एनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन.
और ये फोकस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे भी कर सकता है, जिस तरह मीडियम ऑफ डिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज़ हैं, राइटिंग मोर एक्सेसिबल है, इंफॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल है, और ये जो आईसीटी है enables people to practice skills in an enjoyable way। और ये चीज़ें ये देखनी पड़ती हैं कि however assessment of appropriate technology training and support are the areas which needed special attention। Teachers and carers need to ensure that the selected or provided equipment is suitable for the children with special needs। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे हम बहुत सारे इसके बेनिफिट्स देखे हमने, जहाँ पे हमने इसकी बहुत सारी खूबियाँ खसूसियात देखी, वहाँ पे इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसके अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें though it may have changed and more convenient, it also brought along privacy and security issues from email hacking, phone signal interception। People are worried that personal information may become public knowledge, जिसके अंदर लैक ऑफ सिक्योरिटी है कि फ्रॉम ईमेल हैकिंग, फोन सिग्नल इंटरसेप्शन, और IT keeps changing almost every day, which means that the individuals must be updated with these to secure their jobs। There is also risk factors with the systems, computer viruses, malware, spam वगैरह, और जो है अनएम्प्लॉयमेंट का ख़तरा जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयर्स सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बट एम्प्लॉयज़ आर लूजिंग देयर जॉब्स एज नॉट नीडेड एनी मोर। सोशल मीडिया की तरफ जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि चिल्ड्रन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज़ अफेक्टिंग बाय वॉचिंग एंड प्लेइंग वायलेंट गेम्स, जो आप देखते हैं, और फिर वो उसी तरह ही एक्शंस करते हैं। फिर साइबर बुलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि इट्स थ्रेटनिंग अदर्स इन सोशल नेटवर्क्स पेजेस, दैट दिस हैज़ बिकम मच ईजियर फॉर इंटरनेट यूजर्स all over the world। They don't realize what the consequences are to those readings, hearings, unpleasant comments। ये बहुत ज़्यादा जो है ये हर्टिंग होता है साइबर बुलिंग, इससे किसी की ज़िंदगी, किसी का घराना तबाह हो जाता है, लेकिन लोगों को ये मजाक लगता है। रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, पीपल डोंट बॉदर टू रीड, कैलकुलेट और राइट विदाउट कंप्यूटर्स एनी मोर। इन सेम टाइम losing abilities of handwriting। Why write if can use spell checker के खुद ब खुद ही वो ठीक हो जाता है, होता जाता है, खुद ब खुद ही सारी वो चीज़ें जो है ये उसको राइटिंग को ठीक कर देती हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करती जाती हैं। फिर ये लेटेस्ट रिसर्च ये चीज़ भी दिखाती है कि जो है एसोसिएटेड विद हाई लेवल्स ऑफ इमोशनल लोनलीनेस क्रिएट हो रही है, बट नॉट सोशल लोनलीनेस, क्योंकि वो फिज़िकली किसी से मिल नहीं रहे और बैठे हुए सारा टाइम कंप्यूटर के आगे जो है वो इमोशनली लोनलीनेस में चले जाते हैं। फिर उसके अंदर वो नॉन कम्युनिकेटिव टू अदर्स हो जाते हैं, उनकी नेगेटिव एसोसिएशन हो जाती है, और उनकी सेल्फ एस्टीम, जो लोग हर वक्त इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, वो कम हो जाती है। तो उसके लिए जो है सम रिसर्चर्स ने जो है नोट किया है कि इसकी वजह से जो है उसकी वेलबींग जो है, हैप्पीनेस जो है वो नेगेटिविटी में जा रही है, और इसके बहुत सारे जो हैं चैलेंजेस जो सामने उभर के आ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है has triggered new challenges for teachers। Teachers have to get mastery on the use of ICTs to meet these challenges and learn new ways of teaching and learning with ICT। For this purpose, they need
जो है बहुत सारी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज चाहिए, जिसकी वजह से कि वो बच्चों के साथ उनकी ज़रूरियात के मुताबिक ये कर सकें, क्योंकि इसी वजह से बच्चों ने अब टीचर्स को रिस्पेक्ट देना कम कर दिया है, क्योंकि बच्चे आर फास्टर दैन द टीचर्स, जो कि इसके ऊपर कॉम्पिटेंसी और कमांड नहीं रखते। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, उनके लिए ये चैलेंज है उन टीचर्स के लिए कि वो आईसीटी स्किल्स सीखें, और बच्चों से 2 स्टेप ऊपर ही होना चाहिए, ताकि बच्चे की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको इजीली सॉल्व कर सकें, ताकि उसका रिस्पेक्ट लेवल जो है वो बहाल रहे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। ये थे रेफरेंसेस जो कि जिधर से मटेरियल लेके आपके लिए ये प्रेजेंटेशन लेक्चर आपको दिया गया। और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।